السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ طویل عرصے کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے۔ میں بھی گیا تھا مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات کو کور کرنے کے لیے اپنے چینل کے لیے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ ملاقات کا بھی حال حوال کروں۔ ایک تو میں نے پہلے ویلاگ کیا تھا دن کو، اس میں یہ بتایا تھا کہ ملاقات کی کوریج سے میڈیا کو منع کیا گیا تھا اور اجازت نہیں تھی کہ میڈیا آ کر فوٹیج بنائے یا میڈیا کوئی ٹاک کرنی ہو۔ کوئی میڈیا سے گفتگو نہیں کرنی تھی آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان دونوں نے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ اپوزیشن اپنا پلان خفیہ رکھنا چاہ رہی ہے اور اپنے پتے اپوزیشن شو نہیں کرنا چاہ رہی، اس لیے فی الحال میڈیا سے گفتگو کرنے سے گریز کی جا رہی ہے۔ تو آصف علی زرداری آئے، تقریباً کوئی 7 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ پہنچے تھے شام کو مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر، اور مولانا سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی آصف علی زرداری پہنچے تو مولانا خود نکل آئے اور گاڑی سے آصف علی زرداری اترے۔ مولانا نے ریسیو کیا ان کو۔ مولانا کے ساتھ اکرم خان درانی، مولانا اسد محمود اور مولانا کا بیٹا جو ہے چھوٹا اسجد محمود، یہ بھی موجود تھے۔ اور مولانا نے اپنے پوتے سے، اسد محمود کے بیٹے سے گلدستہ دلوایا ان کے ہاتھوں سے آصف علی زرداری کو، کیونکہ آصف علی زرداری خود بھی بیمار تھے، ظاہر اسپتال میں بھی داخل تھے لاہور۔ مولانا وہاں پہ اسپتال بھی نہیں جا سکے تھے اور ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ بڑے عرصے کے بعد مولانا کی رہائش گاہ پر آ رہے تھے تو ان کا گلدستہ دے کر استقبال کیا گیا۔ پھر ملاقات ہوئی جس میں اکرم خان درانی، مولانا اسد محمود، اسجد محمود اور مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری بھی موجود تھے۔ آصف علی زرداری پارٹی کے کسی رہنما کو، کسی لیڈر کو ساتھ نہیں لے کر آئے تھے۔ رخسانہ بنگش شاید تھی ان کے ساتھ، کیونکہ وہ پولیٹیکل سیکرٹری ہیں آصف علی زرداری کی، وہ ان کے ساتھ تھی، لیکن ملاقات میں نہیں تھی۔ وہ باہر بیٹھی تھی اور ملاقات میں باقی اسٹاف جو ہے آصف علی زرداری کا، سیکیورٹی گارڈز اور باقی لوگ تھے۔ تو ملاقات ایک تو اجتماعی ہوئی مشترکہ طور پر، جو مولانا کے ساتھ لوگ تھے اسد محمود، اکرم خان درانے کے ساتھ، لیکن 30 منٹ کی تقریباً ملاقات 1 on 1 بھی ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں یقینی طور پر ملاقات تھی ہی تحریک عدم اعتماد کے لیے، اور تحریک عدم اعتماد آصف علی زرداری کی اور پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ تھی، خواہش تھی، اور ان کی ہی تجویز تھی کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹانا چاہیے۔ مولانا پہلے نہیں مان رہے تھے، نواز شریف نہیں مان رہے تھے۔ جب انہوں نے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے جب شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی، لاہور گئے ماڈل ٹاؤن میں، تو اس ملاقات کے بعد جب مولانا کو میسج دیا گیا آصف علی زرداری کا، پیپلز پارٹی کا، شہباز شریف نے ان کو قائل کیا، میاں نواز شریف کو بھی، اور پھر پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا گیا۔ پی ڈی ایم میں بھی شہباز شریف نے آصف علی زرداری کا موقف رکھا تھا۔ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی تجویز پر پی ڈی ایم قائل ہوا کہ جی ٹھیک ہے، تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ پھر ملاقاتیں ہوئی ہیں، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سیاسی، لیکن آصف علی زرداری اور مولانا کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی، طویل عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب سے پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی الگ ہو گئی ہے، اس کے بعد غالباً ایک ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری کے ساتھ کراچی کے ہاسپٹل میں۔ آصف علی زرداری ہاسپٹل میں تھے، ایڈمٹ تھے، تو اس وقت مولانا فضل الرحمان ان کے پاس گئے تھے مزاج پرسی کے لیے۔ اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ بیچ میں 2 دفعہ رابطہ ہوا تھا، آخری دفعہ جو رابطہ ہوا، تیسری دفعہ، تو اس میں پھر یہ طے ہوا کہ جی جلد، وہ ہفتہ پہلے ہوا تھا، تقریباً 5-6 دن ہوئے ہیں کہ جلد ملاقات کریں گے۔ تو ایک رابطہ پہلے ہوا تھا جب آصف علی زرداری نانا بنے تھے، یعنی بختیار بھٹو زرداری کو جب بیٹا پیدا ہوا، آصف علی زرداری نانا بنے، تو تب مولانا فضل الرحمان نے ان کو ٹیلی فون کیا تھا اور ان کو مبارکباد دی تھی۔ اس کے بعد پھر اب ملاقات، یہ پہلی ملاقات سمجھیں،
बाज़ाब्ता पॉलिटिकल, वो भी मुलाकात जो पहले हुई थी वो भी आसिफ अली जरदारी के साथ तबा पुरसी करने गए थे, हॉस्पिटल में अयादत करने गए थे। लेकिन ये पॉलिटिकल सियासी एक बड़ी मुलाकात थी। हाई प्रोफाइल मुलाकात तो थी ही, लेकिन मुलाकात बहुत बड़ी इसलिए थी क्योंकि बड़ा फैसला करने के लिए, मुशावरत करने के लिए बैठे थे दोनों रहनुमा। आसिफ अली जरदारी आए थे मौलाना के पास। एक तो आसिफ अली जरदारी एक दूसरे की तबीयत खैरियत दरियाफ्त की, फिर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अब तक जो राबते हो रहे हैं अपोजिशन, जो जो इत्तेहादी जमातों के साथ राबते हो रही हैं आसिफ अली जरदारी के या पीपल्स पार्टी के या चौधरी बरादरान के साथ, इस तरह कहें कि चौधरी बरादरान के साथ जो मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी की, उसका उन्होंने हाल अहवाल दिया। फिर जो मौलाना फजल रहमान की चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात हुई तो उसका भी मौलाना ने उनको, आसिफ अली जरदारी को हाल अहवाल शेयर किया। एक दूसरे को हाल अहवाल शेयर किए हैं एक्चुअली। और फिर MQM के लोगों के साथ मौलाना की मुलाकात, वो भी मौलाना ने उनके सामने रखा। MQM के जो रिजर्वेशन थे कराची के इंतखाबात के, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, वो भी मौलाना ने उनको शेयर किया कि MQM आई तो एक्चुअली ये आपके ख़िलाफ़ शिकायत लेकर आई थी, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, लेकिन MQM के साथ ये हमने बात रखी है। तो इस बात पर दोनों रहनुमाओं ने इत्मीनान का इजहार किया कि एक तो इत्तेहादी जमातें हुकूमत से अब बेजार हो चुकी हैं। अवाम तो बेजार है ही हुकूमत से, या अपोजिशन तो बेजार है ही, लेकिन जो इत्तेहादी 3.5 साल तक हुकूमत की बैसाखियां बने हुए हैं, वो इत्तेहादी भी अब हुकूमत से खफा हो गए हैं, नाला हो गए हैं, हुकूमत से तंग आ चुके हैं कि भाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। इत्तेहादियों के अपने रिजर्वेशन हैं, अपने मसले मसाइल हैं, जो इत्तेहादियों के साथ कमिटमेंट्स वादे वईद किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। ये सारी चीज़ें इत्तेहादियों ने जो जो गिले शिकवे किए हैं हुकूमत के, मौलाना के साथ और आसिफ अली जरदारी के साथ, वो भी इन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किए और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि इत्तेहादी जो है वो भी आने के लिए तैयार हैं और जो हुकूमत के नाराज़ अरकान हैं वो भी आने के लिए तैयार हैं। मौलाना ने फिर आसिफ अली जरदारी को बताया कि नून लीग का क्लेम है, नून लीग ये कह रही है कि भाई कोई 15 से 20 या इससे भी ज़्यादा, यानी 2 दर्जन के करीब लोग जो हैं PTI के नाराज़ लोग, वो नून लीग के साथ राब्ते में हैं और नून लीग से आइंदा आम इंतखाबात में टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं और टिकट की यकीन दहानी पर वो भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट दे सकते हैं। तो इसका भी जायज़ा लिया गया और इसके अलावा इन ऑप्शंस पर भी गौर किया गया कि जी अगर इनसे वोट लिया जाता है PTI के नाराज़ अरकान से, तो फिर इनका क्या बनेगा, इनका फ्यूचर क्या बनेगा और इन पर जो फ्लोर क्रॉसिंग का कानून नाफिज होगा या PTI उनको डी-सीट कराएगी फ्लोर क्रॉसिंग के तहत, तो फिर उसका क्या बनेगा, इसका भी जायज़ा लिया गया। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, कि अगर इत्तेहादियों से वोट लिया जाए तो इत्तेहादी क्या मांग रहे हैं अपोजिशन से, क्या शराइत रखी हैं इत्तेहादियों ने, उसका भी जायज़ा लिया गया। तो ओवरऑल मजमूई तौर पर इस बात पर मुशावरत की गई कि इत्तेहादियों को मिलाया जाना चाहिए या हुकूमत के जो नाराज़ लोग हैं उन पर इन्हिसार किया जाए। स्पेशली जहांगीर तरीन का भी जिक्र हुआ, जहांगीर तरीन से भी खुफिया मुलाकातों की भी खबरें आई हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन के हवाले से भी बात हुई है कि जहांगीर तरीन भी हुकूमत से खुश नहीं है, उनके साथ भी 30 से 40 लोग आ सकते हैं, तो हुकूमत को आसानी से गिराया जा सकता है। और दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि जी इत्तेहादी भी खुश नहीं है हुकूमत से, अपने लोग भी नाराज़ हैं, जहांगीर तरीन अपना अलग ग्रुप बना कर बैठा है। तो हमारे पास ऑप्शंस 3, 4, 5 ऑप्शंस हैं हुकूमत को, यानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए। अच्छा, वज़ारत उज़्मा से तो हटाया जाएगा, लेकिन वो अगर फ़र्ज़ करें हो भी जाता है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के ऑप्शंस भी डिस्कस किए जा रहे हैं। मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि भाई
अगला फिर वज़ीर आज़म कौन बनेगा, क्या अपोजिशन का होगा, अगर अपोजिशन का हो तो फिर किस जमात से हो, नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, और नून लीग से हो तो कौन से उम्मीदवार होंगे, पीपल्स पार्टी से हों तो कौन से उम्मीदवार होंगे। ये सारी चीज़ें, सारे जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए गए हैं आज की मुलाकात में। लेकिन ये मुलाकात कोई फाइनल या हतमी मुलाकात नहीं थी, आगे भी मज़ीद मुलाकातें होनी हैं। सिर्फ दो स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, आसिफ अली जरदारी या मौलाना फजल रहमान या पीपल्स पार्टी और JUI, दो जमातें सिर्फ नहीं हैं, इनके साथ और भी स्टेक होल्डर्स हैं। नून लीग सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है अपोजिशन जमातों में, जिसका वज़ीर आज़म का ओहदा भी जिसका हक बनता है अपोजिशन में, और वज़ीर आला पंजाब का भी हक बनता है। तो नून लीग के साथ भी ज़ाहिर है मुशावरत अब मज़ीद करनी है। मौलाना ने आसिफ अली जरदारी की जो जो ब्रीफिंग है इत्तेहादियों के साथ राब्तों की, आसिफ अली जरदारी ने मौलाना को तो ये कहा है कि भाई अपोजिशन के हुकूमत के जो नाराज़ अरकान हैं वो भी अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं, और इत्तेहादी जो हैं हुकूमत के वो भी हुकूमत से खुश नहीं हैं, वो भी हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। तो अब क्या करना चाहिए हमें। फिर मौलाना ने उनको कहा है कि चलें जी ठीक है। मतलब इस बात पे तो मौलाना ने इत्मीनान का इजहार किया है कि तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए और हुकूमत को हटाया जा सकता है। जरदारी साहब ने ये यकीन दहानी कराई कि हमारी नंबर गेम जो है पूरी है, हमारे पास वोटों की तादाद पूरी है, हम आसानी से इमरान खान को घर भेज सकते हैं। और गिले शिकवे भी हुए, पीपल्स पार्टी PDM से निकल गई, मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि गिले शिकवे भी हुए कि कुछ आसिफ अली जरदारी ने फ़ैसले अपने गिनवाए कि हमने ये अच्छे फ़ैसले किए थे। फिर मौलाना ने अपने गिले शिकवे किए कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ ये फ़ैसले जो है पीपल्स पार्टी ने ज़्यादती की PDM के साथ या अपोजिशन जमातों के साथ, अगर पीपल्स पार्टी ये न करती तो इस तरह होता। ये ज़ाहिर है जब मेल मुलाकात होती है 1 घंटे से तवील मुलाकात हुई है, और इसमें खाना भी था, खाने का सेशन भी था, तो गपशप खाने पे भी चलती रही है। यानी आधा घंटा वन ऑन वन मुलाकात, 15-20 मिनट खाना, बाकी 5-7 मिनट तारफ़ी नशस्त जो होती है शुरू में जैसे ही बैठते हैं। तो 1 घंटे से तवील मुलाकात हुई। मीडिया टॉक इन्होंने नहीं की, दोनों ने, मौलाना ने भी और आसिफ अली जरदारी ने भी, क्योंकि पहले ही मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि कोई मीडिया टॉक नहीं होगी, कोई कवरेज नहीं होगी, फुटेज नहीं बनेगी। जो कुछ होगा वो हम खुद फुटेज भी बनाएंगे और फिर हम बयान भी जारी करेंगे, खबर भी जारी करेंगे। तो एक एलामिया बाद में जारी किया गया जब आसिफ अली जरदारी निकल गए, तो एलामिया जारी किया गया है मौलाना फजल रहमान की पार्टी की जो JUI के तर्जुमान असलम गौरी साहब की तरफ से, कि मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद पर बात हुई। इत्तेहादियों के साथ उसमें लिखा गया है एलामिया में कि इत्तेहादियों के साथ राबतों के हवाले से भी बात हुई, और जो हुकूमत के नाराज़ अरकान हैं, आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि नाराज़ अरकान भी हमारे साथ राब्ते में हैं, तो मौलाना ने भी उनको कहा है। अच्छा, ये भी है कि ये भी खबर आई है कि मौलाना ने इनको ये भी कहा है कि जल्दबाजी न करें इस दफ़ा, क्योंकि पहले हम मार खा चुके हैं सेनेट में, तो अब जल्दबाजी से कोई नुकसान होने के बजाय बेहतर है कि सोच समझकर और पूरी प्लानिंग के साथ ऐसा अटैक किया जाए, ऐसा अटेम्प्ट किया जाए कि हमारा मिस फायर ना हो। यानी इस दफ़ा गलती की कोई गुंजाइश नहीं है अपोजिशन के पास। अगर गलती की तो फिर अपोजिशन कहीं की नहीं रहेगी, फिर इमरान खान ताकतवर तरीन बन जाएंगे। इसलिए इस दफ़ा हमें फूंक फूंक कर कदम उठाना है और सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ आना है। तो आसिफ अली जरदारी ने इस बात पर भी उनके साथ एग्री किया है। तो 1.25 घंटे, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा की मुलाकात थी, जिसका हाल हवाल आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।